हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज है 19 जुलाई 2017 and let's see what's happening in Nifty and let's see let's first discuss about the Nifty stance in which we discuss with respect to pivot points. ठीक है, तो आज निफ्टी जो है पिवट पॉइंट्स के जस्ट ऊपर खुली है और ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जा रही है। और अब फर्स्ट रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा मतलब ये अटकी हुई है काफ़ी समय से, और मे बी मुझे लगता है कि यूरोपियन मार्केट का और ऑल अदर इंटरनेशनल सिनेरियो का वेट कर रही है टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड वहाँ से ऊपर जाने की तैयारी में ही दिखाई देती है until it really falls down to this resistance that is just at 9894 फ्यूचर्स में। तो देखते हैं इसको, जो है मैं अपने सेटअप के साथ देखती हूँ और फिर उसको एक बार और डिस्कस करते हैं। एंड लेट मी मेक इट 15 minutes. देयर इज सम प्रॉब्लम विद Zerodha, although I change it, it gives me 1 minute only. It shows me 1 minute, but actually it's a 15 minutes graph. So this is what it is, right? And to me, looking at it, it looks to me a quite bullish sign. I don't see a reason for it to go down. Although it's going up and down within this channel, but I have a feeling with a great momentum, Nifty is just about to cross. मुझे ऐसा लगता है. I may be wrong. मतलब I can't say that I'm always correct, but as of now, when I'm looking at it, मुझे लगता है कि क्योंकि एक तो sentiments are all fine, the stocks are doing fine. Very few stocks, like yesterday there was an effect on ITC. There was an effect of ITC and the Reliance. They both were in the downtrend, right? And pulling down the market. But today वो भी नहीं है. थोड़े से स्टॉक्स है नेगेटिव, जैसे इंडिगो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा नेगेटिव है, या फिर ACC थोड़ा नेगेटिव है, और थोड़े थोड़े से स्टॉक्स में नेगेटिव दिख रहे हैं, बट दैट डजंट शुड रियली मैटर मच। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी को यहाँ से ऊपर चलना चाहिए, मेरा ये परसेप्शन है। एंड उसका रीज़न ये है कि RSI is at 55 at, I mean, if a little momentum comes, let's say another 10 minutes or 15 minutes, if we give it and momentum comes, I'm sure it should go up. It should go up a little bit more. And let's do one more thing. The way we analyze our Nifty every day. So let's see if I put a horizontal line and see what's happening. Has it broken its initial morning range? Of course, it has broken its initial morning range, and it is in the above positive side only. So what I would also like Nifty to do is to actually go ahead yesterday's morning range, right? अगर निफ्टी yesterday की morning range को cross कर लेती है तो आई एम श्योर इट विल हैव अ स्टांस ऑफ गोइंग अप, जो कि इसने अभी नहीं क्रॉस किया, और ऐसा हो सकता है कि एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये जो अभी मुझे लगता है कि पॉजिटिव है, हो सकता है ये इस बैरियर को क्रॉस ही ना कर पाए और थोड़ा सा टर्न लेके नीचे आ जाए, फिर स्टॉक्स विल स्टार्ट गोइंग, फिर निफ्टी विल स्टार्ट गोइंग डाउन, राइट? तो अभी विल हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल position that we are in right now. There can't be anything we can say, will be saying until ये क्रॉस ओवर 10 मूविंग एवरेज का ऊपर की तरफ हो जाता है और कैंडल्स ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि अभी इसको रेजिस्टेंस लग रहा है। लेट्स सी 5 मिनट्स में देखते हैं, शायद कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो। सो लेट्स सी 5 मिनट्स में क्या हो रहा है। सो ये 5 मिनट्स का सिनेरियो है। इधर भी इसको 200 मूविंग एवरेज से, निफ्टी को बार बार 200 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लग रहा है। So Nifty has to cross this 10 moving average, has to cross this 200 moving average. Then there will be an uptrend setting in, right? Until then, we can't say anything. There has to be a momentum. There has to be volume. There has to be momentum of the price action, and there has to be a momentum of the volume. Then only we can say that the price is going up. Okay. So this was Nifty. तो अभी इनडिसाइसिव मोड में है, बट इफ आई लुक इनटू इट, मुझे इसका स्टांस पॉजिटिव लगता है, ठीक है? बट वो पॉजिटिव कब कंफर्मेशन होगा उसका, जब कैंडल्स ऊपर चली जाएंगी। अभी हमारे पास इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि I was looking into my video number 125, and if you watch it again and come to a point where 9 minutes 25 seconds, I have talked about Petronet. I have said that the Petronet is experiencing a resistance, right?
and I have told you when did I, this is 11th of July, 125th video I've made on, I was just looking at it, 10th of July, right? So I made that video on 10th of July. Let's see what's the situation on 10th of July. ये green candle बनी थी 10th of July को, ठीक है? And that was the day I was saying that Petronet is experiencing a resistance, right? ये देखिए आप, ये वन डे का ग्राफ है, and this is how Petronet has fallen down. किस जगह से? 221 से आज ये 206 रुपए पे है. ये उसने अपना मूवमेंट दिखाया है, राइट? दिस इज prediction through the technical analysis. This is what I mean. I didn't know what lies ahead. Nifty will go up or Nifty will go down. If you know leaving except barring yesterday, कल को छोड़ दीजिए आप, ठीक है? और आज तो पॉजिटिव है, बट कल को छोड़ देते हैं. ये चारों पांचों दिन निफ्टी पॉजिटिव थी, बट पेट्रोनेट वाज नॉट पॉजिटिव, राइट? सो perception, combine it with your technical analysis, and I'm sure we will all be able to produce good results, right? So this was my prediction on 10th of July when this green candle was made, and I have said that the Petronet is standing on a resistance and it has experienced a good resistance. Fine. So आज जो मेरे radar पे है, the stock that I have on my radar is Dr. Reddy. I'll show you that. Now क्यों मुझे ये अच्छा लग रहा है कि एक तो ये मतलब it has fallen down enough and now it has taken a reversal. ये वन डे का ग्राफ है और वन डे में यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है. कैन यू सी दिस सपोर्ट? whenever a stock takes a support means it will never breach that support. अगर सपोर्ट ब्रीच, मतलब कई बार आप देखोगे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर ही चल देता है, नीचे आता ही नहीं है. एंड दैट इज वाई आई फील सब कुछ स्टॉक मार्केट में गलत हो सकता है, किसी भी सेकंड आपकी टेक्निकल सेटअप खराब हो सकता है, बट इफ यू गिव अ परसेंटेज और इफ यू गिव अ प्रोबेबिलिटी, देन स्टॉक जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस में है, दे विल एटलीस्ट हैव अ विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अबाउट 80%. दैट इज व्हाट आई फील. सो दिस इज डॉक्टर रेड्डी. इतने दिन इसने सपोर्ट लिया है और उसके बाद ऊपर चला है. तो आई हैव आइडेंटिफाइड इट बेस्ड ऑन माई वन डे and I have entered it on based on 15 minutes. ठीक है? आज जब मुझे ये 15 मिनट पे ये सपोर्ट दिखाई दिया, MACD और RSI क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई दिया, then I have entered into this trade. ठीक है? तो आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ से है? कहाँ से आपको एंट्री डिसाइड करनी है? एंट्री आपको डिसाइड करनी है वन डे से. ट्रेंड आपको डिसाइड करना है वन डे से. एंट्री कहाँ से लेनी है? 15 मिनट से. 15 मिनट पे भी अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है तो नथिंग लाइक इट. ठीक है? वो आपको एक बहुत अच्छा सा ट्रेड मिलेगा वहां से. ओके, सो दिस वाज ऑन माय ट्रेड एंड समबडी हैज आस्क्ड मी कि शुड ही स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग कोल इंडिया. तो इफ यू आस्क मी, जो छोटे छोटे मूवमेंट है ना, आई वुडंट बिलीव दैट दे आर मूवमेंट्स. मुझे क्या चाहिए? अगर इसको एक्यूमुलेट करना होगा, ऑफ कोर्स देयर इज अगर आप कैश में बाय कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली एक्यूमुलेट, राइट? बट अगर फ्यूचर्स वगैरह की बात करेंगे तो हमको ऐसा कोई ट्रेड नहीं करना है. The candles have to be above 10 moving average. I believe it's making a double bottom in one day, so it sounds quite reasonably placed. You can definitely accumulate it. But अगर अब इसमें अपसाइड क्या है? अपसाइड लिमिटेड है. आज अगर आपने खरीदा है जैसे 248 पे, तो इसका अपसाइड लिमिटेड है कहाँ तक? 258 तक, 10 पॉइंट्स है. फिर उसके बाद अगर रेजिस्टेंस लग गया, जैसे यहाँ से देखिए नीचे जाके ऊपर आया, फिर रेजिस्टेंस लग के नीचे आ गया, तो या तो आप इस जगह पे आप तैयार बैठिए कि अगर इसको रेजिस्टेंस लगेगा मैं सेल करके बाहर आ जाऊंगा, और नहीं तो फिर मतलब वही बात है कि आपका बार बार पैसा जीरो, मतलब नो लॉस पे आता रहे, नो प्रॉफिट पे आता रहेगा. फिर आप बाय करेंगे, जो कई लोगों ने कल लिखा हुआ था, जगह जगह व्हाट्सएप पे था कि इट टुक 6 months टू क्लाइम फ्रॉम 282 340 टू ITC, और व्हेन इट फेल इन वन सिंगल डे. तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ना, कि आप इतनी मुश्किल से उसको एक्यूमुलेट करोगे और फिर वो नीचे आके जीरो कर देगा आपका प्राइस को. सो एक्यूमुलेट व्हेन यू आर कंफर्म्ड, देन you will get a breakout. You will have your price movement will be faster. You will not feel bad. जैसे मैंने आपको एक IMFA दिया था, IMFA मैंने आपको परसों ही दिया है, राइट? we did talk about it the day before. एंड इसमें देखो ये ब्रेकआउट आ गया था कल ही, इसमें परसों ही ब्रेकआउट आ गया था. 548 से इट हैज टेकन यू अप टू 594, करीब 40-50 पॉइंट्स का इसमें ब्रेकआउट आ गया था.
एक और मैंने आपको दे रखा था तलवलकर्स, इवन तलवलकर्स हैव अ ब्रेकआउट। तलवलकर जब मैंने आपको दिया था तो इट वाज समवेयर हियर 316 पे थे, आज ये 330-32 का हाई लगा के आया। दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड स्टॉक्स ऑन अ ब्रेकआउट। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, तलवलकर्स इज अ मोनोपोली स्टॉक, मतलब देयर आर barely एनी स्टॉक्स or companies which are in Indian stock market and which are producing gymming equipment. So this is, I believe, is one of the monopoly stock. So look for opportunity in such stocks and create a value, create a position there, right? And I would say कि कोल इंडिया से तो बहुत बेहतर, बट कोल इंडिया में एक फायदा ये है कि आपको बहुत अच्छा डिविडेंड मिलेगा और अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट श्योरली। सो इवन हमारा VEDL आज बहुत अच्छा कर रहा है। एंड इसी तरह हमने आज जो एक लास्ट पे एक और स्टॉक है वो है वोल्टास। वोल्टास भी हमने सपोर्ट का ही एक ट्रेड है जिसको आइडेंटिफाई कर रखा था। ये देखिए वन डे में सपोर्ट ले रहा है एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग ब्यूटिफुली अप स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ट्रेड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट आई टीच इन माय वेबिनार। And now to guys, you'll have to wait for the next opportunity. Till then you keep learning from my YouTube only, and keep posting your questions. And unfortunately मुझे बहुत लिमिटेड चीज़ें ही आती हैं, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी कुछ पूछना होगा, बट जो भी आता है वो कंप्लीट आता है। मतलब एक एंट्री कब लेनी है, एक एग्जिट कब लेना है, और क्या एक्यूमुलेट करना है और कैसे एक्यूमुलेट करना है, कहाँ कहाँ पे ट्रेड को लेना है, किस ट्रेड को लेना है, वो मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ। निफ्टी का क्या स्टांस है वो मैं आपको समझा सकती हूँ, राइट। सो बिफोर आई क्लोज, लेट मी टॉक अबाउट निफ्टी। आई थिंक इट हैज़ गॉन पॉजिटिवली अप। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। सी अगर 5 मिनट में देखते हैं इसको, तो ये थोड़ा सा इसको अभी रेजिस्टेंस लग रहा है। ये ऊपर 200 मूविंग एवरेज है, जाने की कोशिश की और फिर रेजिस्टेंस लेके आ गई। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में भी इसको एक रेजिस्टेंस लगा है। It has to cross, then only we can say the stance of Nifty is positive. Fine. So with this, I'm going to sign off. I don't have any other thing to share, but please keep posting your inquiries or whatever comment you have. Just please keep writing. It encourages me. Otherwise मुझे लगता है कि मैं बस बोलती जाती हूँ, पता नहीं कुछ सेंस आता है आप लोगों को कि नहीं आता है। But thank you all for listening to my videos. And I'm sure we'll do much more nicer and better trades slowly, gradually. So good day. अच्छे से ट्रेड करिए आप लोग and keep posting. And so many of you young boys keep sending me their queries, and I try to answer all of them. I do try to answer all of them, and I hope my whatever I say makes sense. So I'm really looking forward to talk to you all on one-on-one basis. Bye bye. Good day. Enjoy your trading as I enjoy my video making and sitting on this terminal and doing my trades. I really want you all should also enjoy. No fear, no doubts, no anxiety, only confidence. Okay, bye bye.